now start the study of English language. Hmm. Because I want to teach you English language mm, first. English class one. Class one. Okay. Actually, I'm telling about me. I'm a software engineer, and many students belongs to my South India. That's he don't understand Hindi language. That's why other thing PLYSQL or Python or ASP.NET application program video I create only in English language, not possible to create in Hindi language. That's why I'm telling you watch this video and understand, and then you clear your concept because to in certain scenario without English you cannot do any work in this new version, new type of the situation in this world. So you improve yourself. I only tell Hindi language during teaching things and write in English language, not write Hindi language because I have no more time to write this thing, right? Understand this and improve yourself as soon as possible or as much as possible. Okay, now I start in English speaking class one. Bas- Basically, I want to cover up topic first alphabets. कोई भी लैंग्वेज जो होता है वो उसके जो लेटर्स होते हैं उसके बेस पर चलता है। तो अल्फाबेट से 26 लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना? जिसमें से वॉवेल vowel is only five. A, E, I, O, U. These are the vowel, right? Consonant, consonant, rest of them, rest of them, letters, letters are consonant, consonant, right? Now, जो भी हम हिंदी में वाक्य लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो क्रिया होती है सबसे लास्ट में होती है। वैसे हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्रिया इसमें
सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस रूल के तहत हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ होता है, वैसे समूह को हम वाक्य कहते हैं। कहता है कि मीनिंगफुल मीनिंग मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स is known is known by sentence, or is called sentence. Okay. Types of sentence. Types of sentence में type of sentence. सबसे पहला होता है नंबर 1, assertive sentence. assertive sentence को जो स्टेटमेंट कहते हैं, कथन बोला जाता है। कथन, इसको वो हिंदी में कहते हैं कथन, ठीक है। ये में भी दो तरह के होते हैं। इसका ये पार्ट है, ये है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अब बी है निगेटिव। दोनों ही स्टेटमेंट होते हैं, ठीक ना। अब नंबर 2, इंट्रोगेटिव 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 सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्परेटिव, इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये सब जो वाक्य होते हैं, अब हम लोग कुछ संज्ञा के विषय में बात कर लेते हैं। अब हम बताते हैं नाउन, नाउन के विषय में जानते हैं कि नाउन होता क्या है। एनी नेम इज
नाउन, एलिगेंट इज नाउन। दुनिया का कोई भी नाम हो, वो एक नाउन होता है। ठीक है। अब होता है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में आपका नंबर हो जाएगा आपको। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? यूनिक, यूनिक नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन which is common for all. Wait, noun which is common for noun which is common, common for all of the same kind, of the same kind, like boy, girl, boy, girl, computer, computer. It is okay. Collective noun, collective noun. It is a collection. It is the name of collection, 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 right? Like class, police, committee, police committee, committee, it, material, material, noun. It cannot be, it cannot be counted, counted only, only with or measure, with, with or measure, measure, with or measure. Like rice, curry,
No, it is. It's arrested noun. Arrested noun. Arrested noun. Arrested noun. It is the filling of verb. It is the filling of verb. Like joy, joy, sorrow, happy. It is. नाउन के बाद अब हम बता देते हैं, विशेष करके प्रोनाउन बता दें। प्रोनाउन संज्ञा में, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, तभी ये हमारा पढ़ाई समझ में आएगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun. अभी हम लोग का काम ज्यादा है पर्सनल प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तो व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के लिए विशेष करके। इसमें तीन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, आई एंड सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, you and it, third person, third person is, she, it, a plural, they। सिंगुलर एंड प्लूरल। ही का, आई का मतलब मैं, लिखते जाइएगा। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, हम लोग, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम,
ही का मतलब वह, थर्ड पर्सन से बात हो रही है। ही पुरुष के लिए आता है और सी स्त्रीलिंग स्त्री के लिए आता है। इसका मतलब ये वह ईट छोटे जीव जंतु के लिए या कोई निर्जीव पदार्थ के लिए आता है। ठीक है। इसका भी यह मतलब होता है यह वह। अदे मतलब वे लोग, वी माने हम लोग, अदे माने वे लोग, यू मतलब तुम लोग। ठीक है। ये आपका नॉमिनेटिव केस था। अब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। वीडियो थोड़ा लंबा होगा थोड़ा देर, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम भी नहीं रहता, इसलिए ऐसा आपको बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन मी, प्लूरल अस, सेकंड पर्सन योर्स। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव में आई लाइक यू, you only you is okay, you, you, third person, third person, him, her, it, a plural, them। उसी तरह से आपको बता देना ऑब्जेक्टिव। पॉजिटिव केस बता देते हैं, पॉजिटिव केस जानना जरूरी है। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में फर्स्ट पर्सन माई, आवर, सेकंड पर्सन योर, योर, थर्ड पर्सन इज, हर, it। यहाँ ओके, हियर, डियर। पॉजिटिव केस किसी भी नाउन से पहले आता है, पॉजिटिव केस। जबकि ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ये सब जानना होता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नॉमिनेटिव केस होता है तो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और पॉजिटिव केस होगा वो नाउन से पहले आता है। जैसे आपको अब शुरू हो जाते हैं सेंटेंस।
एक दूसरा प्रोनाउन होता है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 2, डिमोस्ट्रेटिव 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 प्रोनाउन प्रोनाउन इसमें होता है दिस। दिस मतलब या, दिस प्लुरल होता है दीज। दीज माने ये। दैट, दैट मतलब दूर की वस्तु के लिए होता है, और इसका प्लुरल होता है दोज। ठीक है। दिस माने या, दैट माने वह। दिस माने नजदीक की वस्तु को दर्शाया जाता है, दैट मतलब दूर की वस्तु को दर्शाया जाता है। उसी तरह दीज मतलब नजदीक की बहुत सारी वस्तु, और दोज मतलब दूर के बहुत सारे वस्तु। ठीक है। अब मैं इसी के साथ आप लोग को एक्चुअली वर्ब, अब थोड़ा वर्ब बता देते हैं। वर्ब, एडजेक्ट, पहले एडजेक्टिव जान लीजिए। एडजेक्टिव, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसके अर्थ को बढ़ा देता है, तो उसमें को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। क्रिया का, अब विशेषण का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। इट कम कम्स बिफोर बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन and modify its meaning, yeah, added something its meaning. Noun and modify its meaning. जैसे Ram is handsome. Ram is handsome. Here handsome is adjective. राम है क्या है? सुंदर। हाँ, तो ये सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। अब वर्ब की बात करते हैं। वर्ब, क्रिया का काम क्या है? कर, जो भी कोई काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। एनी वर्क इज, एनी वर्क इज एक्शन वर्क, एक्शन एक्शन वर्क इज नोन नोन एज वर्क। अब वर्ब आपके सम एक्जुलरी वर्ब, जो auxiliary, no, auxiliary वर्ब। auxiliary वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। auxiliary वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे आपका इज,
E M R was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will. Can is can is modals, not actually. Okay. Some modals होते हैं modal modals होते हैं okay. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need. Right? These are the modals. एक्शन वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब जैसे आपका कम, कम मतलब आना, गो, गो मतलब जाना, रन, रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना, सिट मतलब बैठना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, लिसन मतलब सुनना, से मतलब कहना, लुक मतलब देखना, सी मतलब देखना, मिलना भी होता है सी का मतलब। ठीक है, हिंदी आप लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं केवल इंग्लिश लिख रहा हूँ। ठीक है, सी, सेंड, सेंड मतलब भेजना। ओके, some now I start writing of sentence. This is my book. दिस इज माई, एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि यह मेरी किताबें हैं, किताब है, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। दैट, दैट इज योर बुक। योर बुक माने वह तुम्हारा किताब है। दूर है वो, बता रहा है कि वह तुम्हारा किताब है, यह मेरा किताब है। दिस इज माई बुक माने यह मेरा किताब है। दैट इज योर बुक, वह तुम्हारा किताब है। ठीक है, उसी तरह से दीज, दीज आर माई बुक, बुक्स, दीज आर माई बुक, ये मेरी किताबें हैं। प्लुरल है, दीज मतलब प्लुरल। आर प्लुरल के साथ लगेगा, इज सिंगुलर के साथ लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होता है। बी केयरफुल।
those those are your बुक, वे तुम्हारी किताबें हैं। ठीक है, दोज आर योर बुक्स। सम सेंटेंस नाउ, राम राम इज अ बॉय, शीला 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 is शीला a given, शीला is a गर्ल। राम एक लड़का है, शीला एक लड़की है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। अब इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? हमारे सामने जो भी चीजें हैं, जैसे हम अपने रूम में रहते हैं ना, तो जो भी चीज हमारे सामने दिख रहा है, स्पीक इन इंग्लिश। लाइक, दिस इज माई टेबल, दैट इज माई अलमीरा, this is my computer, this is my window, this is my room, this is my fan, that is my bottle, that is my book, I am here, you are there. Like, you start off a speaking simple word. First, you don't speak sentence. What is speak? Come, go, stand up, sit down, go to work, and please take rest. One word you try to speak, and mindset do how to speak English. First, mindset is required. Willpower is required to start off speaking. Sometime teach verb is using there. Teach. English has one problem. One problem in the sense कि here verb three forms are there. Three form: come, came, come, go, went, gone, run, run. Run has no problem. Run. Walk, 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 walked. Sit, 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 sit. Read, read, meaning spelling same, but उच्चारण different. इसको अलग से करेंगे. Read, 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 write, wrote, written. Listen, listened, li- li- listened, listened, said, 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 said. Looked, 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 looked. See, saw, saw, seen, send, sent, sent, teach,
Taught, taught by, means Haridna, by, bought, bought. Sell means bechna, sell, sold, sold. Bring मतलब लाना, bring, bring, brow, brow. Please start study carefully. Otherwise, without English knowledge, we cannot join, or do any work in these days. Very important thing to learn English as soon as possible, right? That's why I'm creating this type of video. Okay. Now, too much time. For today, it is enough, right? You learn this thing, and next video I will create for next topic. Okay. Thank you for watching video. Thank you.